I was so impressed with the kids dancing. बच्चों के डांस से मैं इतना इम्प्रेस हुआ, प्रभावित हुआ। I thought I should be joining them in dancing. मुझे लगा मैं भी करने लगूं। And Mahima was making his steps. I said, और महिमा के स्टेप्स भी देखे मैंने। So that the child's name is Abriana. So उस बच्ची का नाम जिसका आज हमने वो किया है डेडिकेशन, उसका नाम है एब्रियाना। Sweet name. बहुत प्यारा नाम है। So it's an Italian name. ये इटालियन नाम है। It's a feminine version of Abraham. और ये एब्राहम का फेमिनिन वो है वर्जन, कह सकते हैं। Father of many and mother of many nations. जिसका मतलब है कि बहुतों का पिता या बहुतों की माता। So how do I know this? और मुझे कैसे पता I ये? searched it out. मुझे कैसे पता चला? मैंने सर्च You किया। think I'm so brilliant, I know everything. आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे पता मुझे। So everybody's enjoying, I guess, in the evening today. So मुझे लग रहा है सब आनंद उठा रहे हैं इस समय। So everybody is believer here, like everybody believes. Yeah. Most of them. Yes. Okay. So we're going to look at the life of Jesus for us this evening, और आज की शाम को हम यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे and also the glory of God. और हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। In St. John chapter 1, So हम यूहन्ना के 1 में जाते हैं। this is John the Apostle wrote about Jesus Christ. और ये जो उनका शिष्य था यूहन्ना, उसका लिखा हुआ सुसमाचार है। And John the Apostle wrote about Jesus very special. और उसने यीशु मसीह के जीवन के बारे में लिखा। He wrote to us why Jesus is God. और उसने हमें ये बताया कि यीशु मसीह क्यों परमेश्वर है। And he also said, I was the one Jesus loved. और उसने साथ में ये भी कहा कि मैं वो हूँ जिसे यीशु मसीह प्रेम करते थे। We can always say like Jesus loves us. हम हमेशा कह सकते हैं कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। So John says in John chapter 1 verse 1. और पहली आयत यूहन्ना के पहले अध्याय की पहली आयत कहती है, In the beginning was the Word. आदि में वचन था। And the Word was with God. और वचन परमेश्वर के साथ था। And the Word was God. और वचन परमेश्वर था। So I've got to keep a timing of half an hour. सो मैं आधा घंटा इस पे आपको समझाने वाला हूँ। So otherwise I'll go the whole night. नहीं, मैं अलार्म लगा रहा हूँ, नहीं तो मैं पूरी रात Everybody's बता ready सकता for हूँ। the whole night if I preach like. कितने लोग यहाँ तैयार हैं पूरी रात सुनने के लिए? Nobody wants to sleep. But we can dance with the kid in the. अब मगर हम बच्चों के साथ डांस कर सकते हैं। So John said, in the beginning was the Word. सो यूहन्ना ने कहा कि आदि में वचन था। Before all the creation was made. और इससे पहले की सारी सृष्टि की रचना हुई। We are in the Milky Way galaxy, they say. और जैसा हम जानते हैं कि हमारी जिस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, And also the other galaxies, and everything was made. The earth was made, heavens and the earth, and plants, planet, and man and woman, everything was made. और सारी चीज़ें बनाई गई हैं, आकाश गंगाएं, हमारी पृथ्वी, आसमान। So Jesus was in the beginning because he's God. He didn't have any beginning. He was before everything. और जैसा हम जानते हैं कि परमेश्वर है यीशु मसीह, और इसलिए उनकी कोई शुरुआत नहीं थी। And it says he was with God, God the Father. और वचन कहता है कि वो परमेश्वर पिता के साथ थे। And the Greek says they were facing each other. और यदि हम इसको यूनानी में पढ़ें तो कहता है कि वो एक दूसरे को देख रहे थे आमने सामने। And the same was in the beginning with God, verse 2. और दूसरा वचन कहता है और वचन परमेश्वर के साथ था। And all things were made by him, and without him was not anything made that was made. और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। So whatever we see in this world, me, you, and everything was made by Jesus Christ. सो इस दुनिया में हम संसार में जो भी देखते हैं, आप और मैं भी उसी के द्वारा बनाए गए हैं। And it was made for the pleasure for Jesus Christ. और ये परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने आनंद के लिए हमें रचा।
So God takes great pleasure in us और परमेश्वर हमसे बहुत आनंदित है, because when He sees us, क्योंकि जब वो हमारी ओर देखता है He sees the hand of His creation. तब वो देखता है कि उसकी बनाई हुई रचना है हम। David said in Psalms, दाऊद ने साम्स में भजन संहिता में कहा He was fearfully and wonderfully made. कि वो अद्भुत तरीके से रचा गया है Everybody is so unique in this world. और हर एक कितना अलग है इस दुनिया में। Have you ever tried trying to figure out one person like you, find out somewhere exactly? क्या आपने कभी अपने जैसे दिखने वाला एग्जैक्टली आपके जैसे दिखने वाले इंसान को ढूंढने की कोशिश की है? You'll never find it. आपको कभी नहीं मिलेगा। You may have little bit of looks, but everything is going to be so different. You and I are, each individual is, everybody is so different from each other. और यहाँ पर हम जानते हैं कि हम दिख भी सकते हैं थोड़ा बहुत देखने में एक जैसे हो, लेकिन हम बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। God has plans for each and every one of us. और परमेश्वर ने हर एक के लिए योजना बनाई है। His own plan. उसने हमारे लिए खुद योजना बनाई I है। remember there was a time I was walking in my own plan. और मुझे याद आता है वो समय जब मैं अपने घर अपने शहर में घूम रहा था And I was in my own plan, और जो मेरा जो प्लान था, but everything changed around. लेकिन वो सारी चीजें बदल गई, वो पूरी योजना बदल गई And then I found Jesus. और मुझे यीशु मसीह मिल गए And then it was a new plan. और फिर एक नई योजना थी। So Jesus made everything, सो यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया made for Him. और उसके लिए, And Him was life, and the life was the light of man. उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। So in Jesus Christ is life, और हम जानते हैं यीशु मसीह में जीवन है Zoe life. और वो है जोई जीवन। Jesus said in John chapter 15, verse 5, यूहन्ना के 15:5 में यीशु मसीह कहते हैं, He said, "You cannot do anything without me in this world." और उन्होंने कहा कि इस संसार में तो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। We can't. हम नहीं कर सकते That's why we need fellowship. और इसके लिए हमें संगति की जरूरत है That's why we need church. और इसके लिए हमें कलीसिया की That's जरूरत why है we need the Bible. और इसके लिए हमें वचन की जरूरत है, So without the life of Jesus, we cannot live. क्योंकि यीशु मसीह के जीवन के बिना हम नहीं जी सकते। The life of Jesus in book of Matthew and Luke. सो यीशु मसीह का जीवन जो मत्ती की किताब में और लूक की किताब में हम पाते हैं, Both the books write about the early life of Jesus Christ. और ये दोनों किताबें यीशु मसीह के शुरू के दिनों के बारे में बात करती हैं, From 1 to 11 years. 1 साल से लेके 11 साल की उम्र तक। So as we have read and we know that He was born in Bethlehem, और हमने जैसा पढ़ा है और हम जानते हैं कि वो बैतलहम में पैदा हुआ, because it was prophesied in Micah chapter 5 verse 2 that He will be born in a place called as Bethlehem. क्योंकि इसकी भविष्यवाणी मीका के 5:2 में हुई थी कि वो बैतलहम में पैदा होगा। And then in Matthew chapter 2 the kings came, the wise men came. और हम जानते हैं कि मत्ती के 2 में वो बुद्धिमान मनुष्य मजूसी लोग आए, And if they were twins, they would be speaking the same time. No, the twins were doing it today. So. और बिल्कुल यदि वो ट्विंस होते तो शायद साथ में बात करते जैसे आज ट्विंस बात कर रहे थे। The wise twins. You know. और बड़े बुद्धिमान ट्विंस थे ये। This man, the wise men, came from the east. सो ये जो बुद्धिमान व्यक्ति थे ये ईस्ट से आए थे And they were led by the star. और पूरब से उनको वो सितारे के पीछे पीछे चलते हुए आए थे। And this star was seen, and they came seeing the star to Bethlehem. और वो जो तारा था उनको बैतलहम तक ले आया। So in our life, like in the book of first 5 book of Moses, और हम जैसा कि जानते हैं अपनी बाइबल में पहली 5 किताबें जो मूसा की लिखी हुई हैं, God led the nation of Israel. परमेश्वर ने इज़राइल के देश को अगुवाई की, उसकी अगुवाई की। And God told them to follow Him. और परमेश्वर ने उनसे कहा कि मेरे पीछे चलो। And then they had the light by day as a cloud, the light by day. और एक बादल के तौर पे उनको दिन के समय पे उनको लाइट रहती थी, रोशनी। So it was like
the cloud was leading them during the daytime. सो वो बादल उनको दिन के समय लिए चलता था, And in the night was the pillar of fire. और फिर रात के समय वो आग का खंबा होता था, And throughout the journey, God was leading them. और पूरे रास्ते परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था। But there was also something that happened, परंतु कुछ और भी हो रहा था वहां पर, because many were not following God at that time. क्योंकि बहुत लोग परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे थे। They went against Moses. वो मूसा के खिलाफ चले गए। And it says in the book of Hebrews chapter 3, और इब्रानियों के 3 में कहता है it says many of the people died in the wilderness. कि बहुत सारे लोग जंगल में मर गए, मरुस्थल में मर गए, Their carcasses fell in the wilderness और जो उनकी लाशें थी वो जंगल में गिर गईं, because they refused to follow God. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना नहीं स्वीकारा। Finally, the people who were 20 years old and under, they lived and went into the promised land. सो आखिर में जो वायदे के देश में पहुंचे वो 20 साल या 20 साल से कम उम्र वाले लोग थे। So God is leading in this world. सो परमेश्वर इस संसार में अगुवाई कर रहा है। So when Jesus was born, सो जब यीशु मसीह पैदा हुए there was a man named Simeon. तो वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था शिमोन, He was in Luke chapter 2. और जिसको हम लूक के 2 अध्याय में पाते हैं। He was led by the Spirit of God. और वो पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो उसको अगुवाई मिली। A Christian, और वो मसीही, a believer, एक विश्वासी, should be led by the Spirit of God. सो एक विश्वासी और एक मसीही को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगुवाई मिलनी चाहिए या उसके पीछे चलना चाहिए उसे। We are walking by faith. हम विश्वास से चल रहे हैं। We are hearing the word of God in Romans 10:27. और रोमियो 10:27 कहता है कि हम उसका वचन सुन रहे हैं कानों के द्वारा। We take the word of God and we read it and we are led by the word. और हम परमेश्वर का वचन लेते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हैं। And when Jesus was small child, there was another lady called as Anna the prophetess. और जब यीशु मसीह छोटे बच्चे थे तब एक ऐना करके प्रोफेटिस थी, एक भविष्यवक्ति वो थी करने वाली, भविष्यवाणी करने वाली। She was a widow. और वो एक विधवा थी। She was a very elderly widow. और वो काफी बड़ी थी, उम्र में वो बहुत बुजुर्ग थी। But to me, she is a great example. परंतु मेरे लिए वो एक अद्भुत नमूना है। She was praying night and day. वो दिन रात प्रार्थना कर रही थी। She didn't have much. उसके पास बहुत कुछ नहीं था। Some scholars believe she became widow very early age. और कुछ स्कॉलर्स का ये विश्वास है कि वो बहुत जल्दी अपने जीवन में विधवा हो गई थी। But she was very prayerful. वो बहुत छोटी थी तब हो गई थी, और परंतु वो बहुत प्रार्थना की में लगे रहने वाली स्त्री थी। And then in the old age, baby Jesus came into her hand. और फिर जब वो बुजुर्ग हुई तो यीशु मसीह, छोटा यीशु मसीह उसके हाथों में Of all the आया, people, और सारे लोगों के बजाय God chose to come to that elderly lady परमेश्वर ने ये चुना कि उस बुजुर्ग महिला की गोद में आए, because she was a woman of prayer. क्योंकि वो प्रार्थना करने वाली महिला थी। We should have a life of prayer. क्योंकि हमें प्रार्थना का जीवन हमारा होना चाहिए। Prayer is amazing. अद्भुत है प्रार्थना। Lot of things which we can't do naturally can be done in prayer. और जो चीजें हम स्वाभाविक रूप से नहीं कर सकते वो हम प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं। So these people were there in his birth, and also the shepherds we saw today, shepherds, you know. और ये लोग थे, और साथ में वो चरवाहे भी थे जो हमने जिनको आज देखा। And they were also watching the flocks by night. और वो रातों को अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। And the angel came and they sang, the glory of God was there, and they said, born is the Messiah, go and see. और फिर वो उन्होंने देखा कि स्वर्गदूत आए और उन्होंने गाया गीत, और उन्होंने कहा कि मसीहा पैदा हुआ है। It's a joy to the world because Jesus is born. और संसार को आनंद, क्योंकि यीशु मसीह पैदा हुआ है। We should be always joyful in Christ. तो हमें यीशु मसीह में हमेशा आनंदित रहना चाहिए। There's so many things that can rob us of our joy. इतनी चीजें हो सकती जीवन में जो हमारे से ये आनंद छीन सकती हैं। But if we have our focus on Jesus, we look to Jesus all the time, and we are not
interested in looking around, but Jesus, if we look, we will always have joy. परंतु यदि हम अपनी आंखें यीशु मसीह पर लगाए रखें और न हटाएं तो वो हम आनंद हमेशा हमारे अंदर हो सकता है। And Luke and Matthew, और लूक और मत्ती, they give the genealogy of Jesus Christ. और वो वंशावली भी देते हैं यीशु मसीह की। Because everybody in this room, you have your genealogy. Do you have any genealogy? Your own genealogy? क्या हमारे किसी भी, जो हम इतने लोग यहाँ पर हैं, क्या हमें अपनी वंशावली के बारे में पता है? Your father's father, who was it? Do you know anybody? क्या आप जानते हैं अपने पिता और फिर दादाजी और परदादाजी और फिर उनके आगे, क्या उनको जानते हैं आप? But my mother was unique in one sense. मेरी माँ जो थी वो बड़ी अद्भुत थी, She अनोखी died 1 थी। year back. और 1 साल पहले उनकी मृत्यु हुई। She knew quite a few genealogies. तो उनको काफी पीढ़ियों के बारे में पता था। Side up, and I was like, I told mom, you're Jewish. तो मैं कई बार अपनी मम्मी से कहता था, क्या आप यहूदी हैं? Her name was Tabitha. उनका नाम तबीथा था। So, but the genealogy of Jesus Christ is there. परंतु यीशु मसीह की जो वंशावली है वो है। Luke says, from Adam his genealogy is given, from Adam and Eve his genealogy is given. और लूक का हम देखते हैं कि वो आदम और हवा की ओर से देता है। And then Matthew gives a genealogy of king genealogy. He starts from Abraham and it finishes in Joseph and Mary. और फिर हम देखते हैं कि जो मत्ती है वो इब्राहिम से शुरू करके यीशु मसीह तक, जोसेफ और मेरी तक आता है। So we have so much of proof about who Jesus is. तो हमारे पास इतनी सच्चाई है कि यीशु मसीह कौन थे, Where did he come from? कहाँ से आए थे, Why he is the Messiah? और वो क्यों मसीहा हैं, Why he is God? और वो क्यों परमेश्वर हैं। Nobody else has this in this world. और किसी के पास ये नहीं है इस पूरी दुनिया में। Bible is truth. और बाइबल जो है वो सच्चाई है। Why is Bible truth? और क्यों सच्चाई है? Because it doesn't lie. क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता। If a man says I am truth and he says all good things about him, I know he's a liar. यदि कोई इंसान होता है और वो बोलता है अपने बारे में सारी अच्छी चीजें, तो मैं समझ जाता हूँ झूठा है ये। Bible says David sinned. और बाइबल इतनी साफ तरीके से बताती कि दाऊद ने पाप किया। Moses, instead of talking to the rock, he hit the rock. और मूसा ने चट्टान से बात करने की जगह उसको छड़ी से मारा। Then there is a woman at the well. She has so many husbands. और फिर वो स्त्री जो कुएं पर मिली यीशु मसीह को, उसके बहुत सारे पति थे। But good thing, परंतु अच्छी बात ये we है don't know her name. हमें उसका नाम नहीं पता। So in heaven you cannot search for that woman. Where are you? सो हम जब जाएंगे हम स्वर्ग में तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे कि वो Oh, कौन you are है। the one with 6 or 5 husbands. सो अच्छा आप हो 5-6 पति वाली, ऐसा अपन नहीं बोल पाएंगे। The woman who was caught in adultery, who is she? और कौन महिला थी जो व्यभिचार में पकड़ी गई? We don't know her name. हमें उसका नाम नहीं पता, But Jesus forgave her. क्योंकि यीशु मसीह ने उसको माफ But कर is it दिया। written in the Bible? क्या वो बाइबल में लिखा है? It's written because it's truth. और ये लिखा है कि ये सच्चाई है। God knows everything about us. परमेश्वर को हमारे बारे में सब कुछ पता है। If you're sitting here tonight यदि आप यहाँ आज बैठे हैं and he says, oh, does God know? और यदि आप सोच रहे हैं कि क्या परमेश्वर को पता है, He knows everything. उसको सब कुछ पता है Nothing hid from him. और उससे कुछ भी नहीं बच सकता। Romans 11:27. रोमियो का 11:27 कहता है It says gifts and callings of God are irrevocable. कि उनके दिए हुए जो वरदान हैं और जो चीजें उन्होंने दी हैं वो वापस नहीं ली जा सकती। Your mistake, और आपकी गलती, your biggest mistake, आपकी शायद सबसे बड़ी गलती, cannot change God's plan. पर उसके द्वारा परमेश्वर का प्लान नहीं बदल सकता। He will keep the plan. वो उसी योजना को बनाए रखेंगे। So where is Jesus Christ sitting today? सो आज यीशु मसीह कहाँ हैं? Is he sitting in a throne of judgment? क्या वो न्याय के सिंहासन पे बैठे हैं? Says, come, I will show you what you did all these days and everything. That's not the Bible says in Hebrews 4:15-16. सो क्या जब हम उनसे मिलेंगे तो कहेंगे आओ मैं दिखाता हूँ तुमने जो सारी गड़बड़ें की हैं, मैं बताता हूँ। He sits on the throne of grace. वो अनुग्रह के सिंहासन पे बैठते So हैं। everything about God's throne is grace. सो परमेश्वर के सिंहासन के बारे में सब कुछ Everything अनुग्रह about है God's throne is mercy. और सब कुछ करुणा है That's what he sits on.
और उस पे वो बैठते हैं। So I have hope every time I come to Jesus, to his throne. सो इसलिए मुझे आशा होती है जब भी मैं उसके सिंहासन के पास जाता हूँ, Because Jesus is God. क्योंकि यीशु परमेश्वर है। But he chose to become a man like us. परंतु उसने चुना कि वो हमारे जैसे एक मनुष्य बने, And then he was not only a baby, और वो सिर्फ एक छोटा बालक ही नहीं बना, he grew. वो बड़ा हुआ। Luke 2:62 it says he grew in stature. He grew in stature. और जैसा लूक 62 बोलता है कि वो बड़ा हुआ With man और मनुष्य and God. और परमेश्वर की नज़र में। We are here in the church today. आज हम इस चर्च में हैं, कलीसिया में But we हैं। also should consider this. परंतु हमें आज ये समझना चाहिए Am I growing? कि क्या मैं बढ़ रहा हूँ, Am I knowing Jesus more? क्या मैं यीशु मसीह को पहले से ज़्यादा जानता हूँ, Am I studying the Bible? क्या मैं बाइबल का अध्ययन कर रहा हूँ। I can know the person Jesus as a person, मैं यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति के तौर पे जा सकता but do हूँ, I know him personally? क्या मैं उसको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। Moses in Exodus chapter 34 verse 6, एक्सोडस 34 के 6 में हम देखते हैं मूसा Moses said, God show me your glory. मूसा ने कहा परमेश्वर आप मुझे अपनी महिमा दिखाइए, God said, I will show you my glory. और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अपनी महिमा दिखाऊंगा। So what was his glory? और उसकी महिमा क्या थी? His glory was Exodus 34:6 it says, और यदि हम निर्गमन के 34:6 में जाते हैं, And the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God, merciful, gracious, long-suffering, abundant in goodness and truth. और परमेश्वर वहां से गुजरा और उसने कहा 34:6 ओके, यहोवा उसके सामने से होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। I should know how merciful God is. सो मुझे पता होना चाहिए कि परमेश्वर How कितना gracious दयालु God is. है, कितना अनुग्रहकारी है, How long-suffering God is. और कितनी देर वो सह सकता है, And also abundant in goodness और वो भलाई से कितना भरा हुआ है and truth. और सच्चाई से। If we can do this year as year goes by, और ये साल यदि हम ये कर सकें जैसे जैसे ये साल गुजरता है that I want to know Jesus Christ. कि मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूँ। Hey, listen this thing, और इसको सुनिए There's a world outside. कि बाहर एक संसार है It's not getting better. और वो अच्छा नहीं होता जा रहा है, It's getting more demonic and demonic and demonic. और वो ज़्यादा से ज़्यादा वो दुष्ट आत्माओं से भरता जा It रहा will है। go on getting more demonic as days go by. और जैसे जैसे समय गुजरेगा वो दुष्ट आत्माओं से और बढ़ता जाएगा। So what will preserve me in this world? सो इस संसार में कौन सी चीज मेरी रक्षा कर सकती है? It's the light of Jesus Christ. वो सिर्फ यीशु मसीह की ज्योति है। You cannot walk in the darkness of this world without the light of Jesus. आप इस दुनिया के अंधेरे में चल ही नहीं सकते यीशु मसीह की रोशनी के बिना। 1 John 2:15-16 पहला यूहन्ना 15 और 16 कहता है says all that is in the world, कि संसार में जो कुछ है the lust of the flesh, वो सिर्फ कामना है, lust of the eyes, और आंखों की कामना and the pride of life. और जीवन का घमंड। This is what is dominating in this world. और यही इस दुनिया को इस समय डोमिनेट The कर रहा है। world is lying in wickedness. और इस वक्त दुष्टता में पड़ा हुआ है संसार। Who can protect us in this world? और कौन हमें बचा सकता है इस संसार में? It's Jesus Christ can do it. सिर्फ जीसस क्राइस्ट। So when Jesus Christ ascended, he became a man, he died on the cross, and then he rose again from the dead and he ascended. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह किस तरीके से क्रूस पर मरा और फिर उसके बाद वो गाड़ा गया और वो तीसरे दिन उठा, और बाद में वो हम देखते हैं कि स्वर्ग पे चला गया। Then he gave us one unique person. और फिर उसने हमें एक अद्भुत व्यक्ति को दिया, He gave us the Holy Spirit. और उसने हमको पवित्र आत्मा को दिया। He said the Holy Spirit will come into you. और उसने कहा कि पवित्र आत्मा तुम में आएगा।
when I believed, जब मैं विश्वास करता हूँ I knew something came in my body. तो मुझे ये पता चलता है कि कोई आया है मेरे शरीर में, Then I realized it was the Holy Spirit that came. और तब मैं महसूस कर पाता हूँ, समझ में आता है मुझे कि पवित्र आत्मा है वो। We need to walk in the Spirit. हमें आत्मा में चलना है। Galatians 5:16 and 17. सॉरी, Galatians 5:16, 17. और गलातियों का 5:16 और 17। We need to walk in this world with the Word. और हमें इस संसार में चलना है, We need to receive grace from God. और हमें परमेश्वर से अनुग्रह ग्रहण करना है। God is always going to come and help us. परमेश्वर हमेशा आके हमारी सहायता करेगा। Bible says God will never forsake us. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। 3 times it says, I will never forsake you. और 3 बार वो कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। If that was not true, यदि ये सच नहीं होता then I wouldn't be standing here. तो मैं यहाँ पर नहीं खड़ा होता आज, Because God is God. क्योंकि परमेश्वर है। But Jesus, परंतु यीशु मसीह, he chose to become a man. वो एक मनुष्य बनना उसने चुना। So Christmas is all about him. और क्रिसमस जो है सब उसके बारे में ही है। And as we celebrate Christmas today, और आज जब हम क्रिसमस मनाते हैं, we look at the person of Jesus. हम यीशु मसीह की ओर देखते हैं। 2 Corinthians 3:18. और 2 कुरिन्थियों 3:18, See, it says God is changing from us from glory to glory और वो कहता है कि परमेश्वर हमें महिमा से महिमा में बदल रहा है, through the Spirit of the Lord. और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। Our prayer could be like this: God, और हमारी प्रार्थना हो सकती है कि परमेश्वर, I want to know you more this year. कि मैं आपको इस साल और जानना चाहता हूँ, I want to see your glory upon glory, और मैं आपकी महिमा पर महिमा देखना चाहता हूँ, because I want to know you, Jesus, क्योंकि मैं आपको जानना चाहता हूँ as a यीशु, person. एक व्यक्ति के रूप में। Lead me in the Spirit to know you. और मुझे आत्मा में मेरी अगुवाई करिए कि Pray मैं when आपको you जान read the सकूं। Bible. Pray when you read the Bible. जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना के साथ करिए, Go to God and says, open my eyes of the understanding. और परमेश्वर के पास जाके कहिए कि मेरी समझने की आंखें खोलिए। If we are not reading the Bible, यदि हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे it's very difficult, तो बहुत मुश्किल है, because then the world will teach us. और यदि नहीं पढ़ते हैं तो फिर संसार हमें सिखाने लगेगा। And you know what the world is going to teach. और आप जानते हैं कि ये संसार हमें क्या सिखाएगा। The devil is there in this world. शैतान है इस दुनिया में, संसार में। But thank God for Jesus. परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर का यीशु के लिए। It says in 1 John, Jesus Christ came to destroy the works of the devil. और पहले यूहन्ना में कहता है कि यीशु मसीह आए ताकि शैतान के कामों को नष्ट कर सकें, And he did that. और उन्होंने वो किया। In Genesis 3:15, और जब हम देखते हैं उत्पत्ति के 3:15 में, God gave Eve, says your seed will destroy the head of the serpent. और परमेश्वर ने हवा को कहा कि तेरा बीज इस शैतान के सिर को कुचलेगा, But Satan will bruise the heel of Jesus. परंतु शैतान जो है उसकी एड़ी को डसेगा, यीशु But मसीह की। then the blood of Jesus gave us the victory on the cross. परंतु वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के लहू ने हमें वो विजय दी। Galatians 4:4. गलातियों का 4:4 Says, देखें in the fullness of time, कि जब समय पूरा हुआ, Jesus Christ came. यीशु मसीह आया। And before him was John the Baptist. उसके पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, And he said, John 1:29, behold the Lamb of God who takes away the sin of the whole world. और उसने कहा यूहन्ना 1:29 में कि देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पापों के लिए आता है। He was already a lamb. वो पहले ही मेमना हो चुका था। It was already decided in Acts chapter 2, Father, Son and the Holy Spirit, they sat and they say, Jesus, you are going to go as a man because man has sinned and you have to go as a man and die for mankind. जैसा प्रेरितों के 2 में हम जानते हैं कि जब त्रिएक एक साथ बैठा तो उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि तुझे इंसान के पापों के लिए जाना पड़ेगा और तुझे वहाँ मरना पड़ेगा। And Jesus Christ came.
और यीशु मसीह आया। What an awesome day he came for. कितनी अद्भुत चीज है। And then he never sinned once. और उसने एक भी पाप नहीं किया, He never thought one sin once. और एक भी उसने बुरा विचार नहीं आया उसके दिमाग में, But yet he died for the sins. और फिर भी वो हमारे पाप It was हमारे very लिए मरा। painful. They say it was very painful to die on the cross. और ये कहा जाता है कि क्रूस की मृत्यु बहुत दर्दनाक होती है। One day I wanted to experience what exactly pain would be. और एक दिन मैं सोच रहा था कि अनुभव करूं कि कैसा पेन होगा। So I took one of those hairpins. Ladies have that hairpins, no? In the country. सो मैंने एक लेडी वाली जो हेयर पिन And I होती है वो put ली, it in my finger and I said, how long I will bear the pain. You know, it was like sharp, you know. और वो शार्प थी, वो बहुत तीखी थी, और मैंने जब उसको अपने हाथ में लगाया Up to some extent, I started bearing. You know. सो थोड़े समय तक मैं उसको सहन कर पाया। Finally, I said, it's too much pain to bear. You know. परंतु मुझे थोड़े ही समय में समझ में आया कि बहुत मुश्किल है ये दर्द को But सहन। imagine the nails in Jesus Christ's feet, परंतु सोचिए यीशु मसीह के पैरों पर जो कीले the ठोके गए nails थे, in his hand. और उसके हाथों पर जो कीले ठोके गए थे, It was very tough cross to bear. और वो बहुत मुश्किल क्रूस था उठाने के लिए। We cannot take the life of Jesus Christ lightly in this world और इस संसार में यीशु का जो जीवन था उसको हम हल्के से नहीं ले सकते, because he paid a heavy price. क्योंकि उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। Acts 20:28 it says he paid the price with his own blood. और जैसा कि प्रेरितों के 20:28 में लिखा है कि उसने अपने खुद के लहू से वो कीमत चुकाई, And that's why we are redeemed today. और इसके लिए हम आज हमारा छुटकारा हुआ है। Finally, I want to say this. और आखिरी में मैं ये कहना चाहता I हूँ, was in Orissa. मैं उड़ीसा में था, We were soul winning with Pastor Pradeep. We were going to villages and soul winning. और हम आत्माओं को जीत रहे थे विलेजेस में, देहातों में जाके। We went to this place, और हम एक ऐसी जगह गए, very poor place. और जो बहुत गरीब लोगों से बनी थी, बहुत गरीब लोग थे वहाँ के। Then we met a lady here, और वहाँ पर हम एक महिला से मिले, and she was in her 80s, I guess. और शायद वो 80 साल से ऊपर थी। So we told her who Jesus is, और हमने उसको बताया कि यीशु मसीह कौन है, and we gave a salvation message. और हमने उसको सुसमाचार सुनाया उद्धार का। She was not so educated. वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, She accepted Christ as a savior. और उसने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। Then she asked me, और फिर उसने मुझसे पूछा He's the one, Jesus. He's the savior of the world. कि ये सारी दुनिया का उद्धार करता है यीशु मसीह। I said yes. और मैंने कहा हाँ। So he says, how long this message has been in this world? और उसने पूछा कि कितने समय से ये सुसमाचार जो है ये इस दुनिया में है। So I said, near about 2000 years. तो मैंने कहा भाई 2000 साल से है। So she said one thing. तो उसने एक चीज कही। She said, why did you come so late? तो उसने कहा कि फिर आप इतनी देर से क्यों आए? If you have the message for 2000 years, and why did you come so late when I am old now? I don't have many years to live. और यदि ये 2000 साल से ये सुसमाचार इस दुनिया में था तो आप इतनी देर से क्यों आए? मैं अब इतनी बुजुर्ग हो चुकी हूँ। I'm glad she was saved. और मैं बहुत खुश हुआ कि वो उद्धार में आ गई So थी। my question is this, Latuna. सो आज आपसे मेरा सवाल है Why we are here? कि हम यहाँ क्यों हैं? We are celebrating, yes? Celebrating the birth. of हाँ, Jesus. हम यीशु मसीह का But जन्मदिन is मना that रहे the हैं। end? क्या सिर्फ इतना ही? It's more than that, no? इससे ज्यादा है ना? There is somebody in your life or somebody in your path. God will put that person and you will get a chance to share the gospel. No? और परमेश्वर आपके जीवन में जरूर ऐसे किसी व्यक्ति को डालेगा जिसके साथ आप सुसमाचार बांट सकते हैं। Even if you share for one person in a year, you have done a great job for God. You know? और यदि साल में आप एक व्यक्ति, एक आत्मा को भी जीतते हैं तो आपने परमेश्वर का बहुत बड़ा काम कर दिया। Otherwise, that person will say, before standing before Jesus, nobody came to me, Jesus, how can it be possible? नहीं तो वो व्यक्ति कल को जब यीशु मसीह के सामने खड़ा होगा तो बोलेगा किसी ने मुझे नहीं बताया इस बारे में, आपके बारे में। You know, but God is gracious. He will always make sure that people will have the message somehow. और परंतु परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी है तो ये वो पक्का कर लेता है कि कम से कम ज्यादा लोग उसके पास सुसमाचार पहुंचा सकें। But we have the message.
परंतु हमारे पास सुसमाचार है, God is संदेश है, using each and every one of us. और उस संदेश के लिए परमेश्वर हम में से हर एक को इस्तेमाल कर रहा It's है। not only the pastor who can do soul winning. It's not the job of only the pastor. Pastor, तुम जाओ, हम देखते हैं साल भर, you know. सो सिर्फ पास्टर का काम नहीं है ये कहना उनको कि आप जाइए, हम आ जाएंगे। It's a job of everybody. ये हम सब का काम है। I'm not telling win 100% to Christ. Just one person in the world. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 लोगों को जीतिए, एक व्यक्ति को जीतिए। Just talk to somebody about Jesus. सिर्फ किसी एक व्यक्ति से यीशु मसीह के बारे में बात कर लीजिए। There are a lot of people in India and all over the world. They are waiting for that Messiah. और क्योंकि इंडिया में और बाहर भी बहुत लोग उस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। They are looking, who's that person, who's the righteous one, the holy one. All they find is useless people around them, all useless people. और वो ढूंढ रहे हैं कि कौन है वो धर्मी व्यक्ति, कौन है वो पवित्र व्यक्ति, क्योंकि उनके चारों तरफ बेकार लोग हैं। Who's that God? और कौन है वो परमेश्वर? My sin. और मेरा पाप। So they are always looking for a savior. सो वो एक उद्धारकर्ता को ढूंढ रहे हैं। So that's why Jesus came, isn't it? और इसलिए यीशु मसीह आया। What Jesus means? और क्या जरूरत है? What does the name Jesus mean? और यीशु मसीह का नाम का मतलब क्या है? यीशु One नाम who का saves people from their sin. कि वो जो लोगों को उनके पापों से बचाता है। What Christ or Messiah means? क्या मतलब है मसीह का? The anointed one. वो जो अभिषिक्त है, God. परमेश्वर। So he has an earthly name, then he is God, hypostatic union, two person in one, God and man. और हम जानते हैं कि वो परमेश्वर है और वो इंसान है, और हम उस व्यक्तिपरक विभेद के बारे में हम जानते हैं। Finally, आखिर में he is going to come back. और वो वापस आने वाला है He is going to ask you a question. और आपसे सवाल पूछने वाला है। What did you do with the life which I gave you on the earth? और जो जीवन मैंने तुम्हें दिया था इस जमीन पे, उसका तुमने क्या किया? We have to give an account और हमें हिसाब देना पड़ेगा to God. परमेश्वर को। God is going to ask us. परमेश्वर हमसे पूछेगा, The answer will be yours. उत्तर आपका होगा Answer will be mine. और उत्तर मेरा भी होगा। But today's Christmas we enjoy. आज का क्रिसमस हमने एंजॉय किया, But God परंतु परमेश्वर came, आया died, और हमारे लिए मरा rose again, और जी उठा तीसरे दिन। and then he has now is the throne of grace and he is interceding for each and every one of us. और अब वो अनुग्रह के सिंहासन पर से हम सब के लिए इंटरसीड कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है। That's who God is. और वो है Even परमेश्वर। now he is thinking about you. अभी भी वो हमारे ही बारे में सोच रहा है। Amen. आमीन। And you have never believed in Jesus और आपने अभी तक यीशु मसीह पर भरोसा विश्वास नहीं किया as है, your Savior, आप उसको अपना उद्धारकर्ता नहीं माना है that He died for your sins. कि वो आपके पापों के लिए मरा, Maybe today is the opportunity. तो शायद आज वो मौका है। I remember I did that long time back. और मुझे याद है कि मैंने बहुत साल पहले ये किया था, I'm not disappointed. और मैं निराश नहीं हूँ। So we will pray a short prayer. तो हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे You can believe Jesus. You can bring Jesus in your heart. और यीशु मसीह को अपने हृदय में आप ला सकते So हैं। let's close our eyes. अपनी आंखों को बंद करेंगे, So if you want to receive Jesus और यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं तो as your Savior, अपने उद्धारकर्ता के रूप में, pray this prayer with me. तो ये प्रार्थना करें मेरे साथ Say, और बोलिए Dear Heavenly Father, कि हे स्वर्गीय पिता, I receive your Son, मैं आपके पुत्र को ग्रहण करता हूँ या करती हूँ, Jesus Christ, यीशु मसीह, as my Savior. यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ That He died कि वो मरा for my sins. मेरे पापों के लिए। In this world, इस संसार में lead me, मेरी अगुवाई करें guide me, और मुझे बताएं, निर्देश दें, help me. मेरी सहायता करें। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम में
Amen. आमेन। So if you have received Jesus for the first time, you can meet Pastor and us, and we can always speak to you. और यदि आपने यीशु मसीह को पहली बार स्वीकार किया है तो आप पास्टर से बात कर सकते हैं।